ओके, तो इससे पहले वाले टॉपिक में लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड द फॉर्मूला इज गिवन बाय V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R. Now suppose in that configuration there are more than one charges, then we have to calculate potential at a point P if there are multiple charges. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि suppose there is a point P, यहाँ पे हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, बट देर आर मोर देन वन चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस. So we will use the principle of superposition to calculate that the total net potential at this point. Suppose there is a charge Q1 at a distance of, and the position vector is R1. Suppose now there is another charge Q2 at some other distance, and the position vector is R2. As there is a third charge here. These are all point charges and the position vector here is R3. Similarly, there are n charges with a position vector here. Now since we know this, the potential at point P due to Q1 will be 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R1, and potential at this point because of charge Q2 will be 1/4 pi epsilon naught Q2 upon R2. Similarly, Q3 upon R3, Qn upon Rn. This is what actually is. So let us say first electrostatic potential because of charge Q1. So I will write it V1 is equal to K Q1 upon R1, and V2 is equal to K Q2 upon R2. V3 is equal to K Q3 upon R3, and Vn is equal to K Qn upon Rn, where K is 1/4 pi epsilon naught, where K is 1/4 pi epsilon naught. Now since we know that potential is a scalar quantity, so the total potential at point P will be the algebraic sum of all the potentials. So we know this, we are using just the principle of superposition. So the total V net, I'll write V net is equal to V1 plus V2 plus V3 plus Vn. So this will be K Q1 upon R1 plus K Q2 upon R2 plus K Q3 upon R3 plus will go on K Qn upon Rn, or K I will take it outside. It is simply Q1 upon R1 plus Q2 upon R2 plus Qn upon Rn, and this is the formula of V net. Okay, so this is what we need to understand. Okay, now इससे रिलेटेड कुछ और थोड़े से छोटे नोट्स हैं. सपोज दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस, सो नॉन कंटिन्यूस चार्जेस. सपोज देयर इज अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. उस समय हम क्या करेंगे कि विल टेक, सपोज देयर इज अ क्लोज सरफेस, तो उसका एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी रो, जो हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं. तो रो, तो पहले हम क्या करेंगे, पूरे इंटायर वॉल्यूम को लेंगे, उसमें से एक पॉइंट लेंगे, उसका छोटा टुकड़ा लेंगे, और वहाँ पे उस छोटे टुकड़े पे हम एक कंसिडर करेंगे एक वॉल्यूम डेल्टा V. उस डेल्टा V में हम जो चार्ज है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. चार्ज ऑन दैट स्मॉल एरिया इज स्मॉल वॉल्यूम इज रो टाइम्स डेल्टा V. अब वहाँ पे ये चार्ज मिल गया, वहाँ पे उसका पोटेंशियल निकाल लें, और ऐसा ही सब जगह
छोटे छोटे टुकड़े में हमने तोड़ा है, उसको सब जगह का पोटेंशियल निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, देन वी विल गेट द टोटल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए एक क्वेश्चन इसमें करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट उसको समझना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। देयर इज वी हैव टू कैलकुलेट the position where the potential will be 0. Suppose there are two charges, one is 3 into 10 power minus 8 coulomb and the other is minus 2 into 10 power minus 8 coulomb. They are located at 15 centimeter apart, 15 centimeter के distance में है। तो हमको calculate करना है at what point the potential, electric potential will be 0. हाँ, suppose there are two charges, suppose there is a point A and there is a point B. पॉइंट A में एक पॉजिटिव चार्ज है 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम, पॉइंट B में एक नेगेटिव चार्ज है माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम. डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर. Suppose I will draw a diagram here. Here the charge is 3 into 10 power minus 8 coulomb. Here charge is minus 2 into 10 power minus 8 coulomb. We have to find out a place where the electrostatic potential is 0. Now we have to first, and also AB is equal to, this distance is 15 centimeter. Now we have to use our logic, है ना. These are opposite charges, so the potential will be mutually opposite here, है ना. तो हम पहले यहाँ पे अगर करते हैं, सपोज इस पॉइंट में हम कंसिडर करते हैं ये पॉजिटिव चार्ज के इस साइड. अब बिकॉज इट इज़ नियरर टू ए और यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है इसकी वैल्यू भी, यानी इस चार्ज की वैल्यू भी ज़्यादा है एंड इट इज़ नियर ए, सो इट विल बी वेरी हाई है द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ at this point because of A will be very high. Now the distance is from B is very it is far away from B and the charge also is lesser than at point A. तो इसका इफेक्ट यहाँ पे बहुत कम होगा, इसका ज़्यादा होगा और ये पॉइंट आएगा ही नहीं इस साइड, जो इस साइड में जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो हो, है ना. सिंस दिस पॉइंट इज नियरर टू द पॉजिटिव चार्ज एंड वेरी फार अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, तो इस पॉइंट में इट्स नॉट पॉसिबल कि इसका पोटेंशियल ज़ीरो. ठीक है, यहाँ आपको हम ये कर देते हैं डिस्कार्ड. अब यहाँ बीच में देखते हैं, बीच में यस बिकॉज ऑफ ए, अगर मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ तो ए का इफेक्ट ज़्यादा है, यानी पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट कम है. ये वीक पोटेंशियल क्रिएट करेगी, ये स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा. इट विल बी क्लोजर समवेयर टू दिस चार्ज, स्मॉलर चार्ज, जो भी स्मॉलर चार्ज हो उसके पास रहेगा. तो यहाँ पे स्मॉलर चार्ज ये है B, है ना. तो विल टेक अ पॉइंट हियर जिसको हम O मान लेते हैं, एट ए डिस्टेंस ऑफ x सेंटीमीटर, है ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ x सेंटीमीटर फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज वेयर द पोटेंशियल मे बी ज़ीरो. और पोटेंशियल में भी ज़ीरो का मतलब है VA माइनस VB इज इक्वल टू ज़ीरो. तो पहले हम पॉइंट B के का पोटेंशियल VB निकालें. VB इज इक्वल टू K, Q है माइनस 2 × 10⁻⁸ कूलम अपॉन R. R यहाँ पे है X, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो उसको हम चेंज कर देते हैं मीटर में. तो ये हो गया VB, सॉरी हाँ VB. सिमिलरली VA इज इक्वल टू K, चार्ज इज 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड डिस्टेंस विल बी हियर 15 minus x into 10⁻⁸
2. Now VB minus VA is equal to 0. So या VA माइनस VB भी बोलोगे तो भी एक ही आएगा. हम VA माइनस VB ही करते हैं ताकि ये इजी हो जाए कैलकुलेशन में. सो VA माइनस VB इज इक्वल टू 0. VA है K इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 15 माइनस x इंटू 10⁻⁻2 प्लस VB. अब प्लस माइनस चार्ज है यहाँ पे तो प्लस की जगह वो माइनस हो जाएगा. K इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम डिवाइडेड बाय x इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू 0. नाउ K कट जाएगा क्योंकि सट जाएगा तो K कट गया. 10⁻8 भी कट गया. 10⁻2 भी कट गया. तो बचा क्या यहाँ पे? यहाँ बचा 3/15 माइनस x माइनस 2/x इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे अगर यहाँ से तो 3/15 माइनस x इज इक्वल टू 2/x. 3x is equal to 30 minus 2x. 5x is equal to 30. X is equal to 6. So this distance is 6 centimeter. And some 6 centimeter from negative charge, the potential will be 0. 6 centimeter from the negative charge. तो A से कितना डिस्टेंस होगा? वो 9 सेंटीमीटर होगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है. प्लीज़ पे अटेंशन हियर. यहाँ पे 0 हुआ तो इस साइड पे भी कहीं पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इसका इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा और बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज का इफ़ेक्ट कम होगा. एक पोटेंशियल हमको दूसरे साइड भी मिलेगा. सपोज़ वो कितने दूरी पे मिल रहा है? सपोज़ एक हमको यहाँ पे मिल रहा है एट ए वेरी फार अवे डिस्टेंस, है ना. तो हम इसको O' मान लेते हैं, है ना. और अगेन इसको मैं थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगा. नाउ वी विल कंसिडर देयर सम पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ x from the negative charge B से, है ना, where the potential because of A minus potential because of B is equal to 0. तो यहाँ अगर ये x है तो A से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? वो ये हो जाएगा 15 प्लस x. अब फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं. VA प्लस VB इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे K इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम अपॉन R कितना है यहाँ पे? ये है 15 प्लस x इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर. तो मीटर में चेंज किया. प्लस की जगह यहाँ पे तो माइनस हो रहा है तो माइनस K इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x इज इक्वल टू 0. अगेन सेम चीज़ें. K कट गया, 10⁻⁻8 कर गया और 10⁻⁻2 भी कट गया. अब यहाँ पे आ रहा है, बचा क्या यहाँ पे? 3/15 प्लस x माइनस 2/x 0. So 3x is equal to 30
प्लस 2x, तो x इज इक्वल टू 30। अगर सॉल्व करेंगे तो आपको x इज इक्वल टू 30 मिलेगा। सो अब इस केस में देयर इज अ पॉइंट along O dash B where from at a distance of 30 centimeter from the negative charge the potential will be 0 and this is the answer। A से वो कितने दूर होगा? 30 plus 15, 45 centimeters away। So at a point 30 centimeters away from B and 45 centimeters away from B in the same direction, the potential will be 0। So this is all about the potential at point and the potential due to many charges at a point। The next topic will be electrostatic potential at a point due to an electric dipole। So prepare well। अगर कोई doubt होगा you can ask questions in my WhatsApp। Thank you।